وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے یا حسین ابھی بھی کچھ ہاتھ نیچے بیٹھا ہے یا حسین جتنے ہاتھ نام حسین کے نام پہ اٹھے اللہ سب کو نام حسین کہتا ہم لوگ امام حسین کے نام پر ہاتھ نہیں اٹھا پاتے تو گردن کفا چار کرسی خالی آپ لوگ آ جائیں وہ سونے کی جگہ سننے کی جگہ نہیں ہے وہ سونے کی جگہ وہ سننے کی جگہ نہیں ہے وہاں بیٹھے اور چار مصرع آ گیا وہ مسکرا کر فاطمہ کی جس نے اپنا سر اٹھایا کربلا کی گود میں پیٹ پر نیزے یہی کل یہی سر کا محمد مصطفیٰ یہی بولے کل یہی سر کا محمد مصطفیٰ کی محترمات امام حسین کے بارے میں آقا فرماتے حسین انی وانا من الحسین میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے اب سماعت کریں کہ وہ شخص منہ صحابی تھے ان کا نام حبیب ابن مظاہر تھا جب کربلا کی تاریخ کا واقعہ پیش آیا جب سن 60 ہجری کا معاملہ پیش آیا یزیدی لشکروں نے جب امام حسین کو جامع شہادت دلانے کی کوشش کی کوفہ والوں کی غداری مشہور تھی جس نے حضرت علی کو دھوکہ دے کر مارا تھا حضرت امام حسین کو چٹھی لکھ رہے تھے کہ آئے میں آپ کے ہاتھ کو بیعت کروں گا آئے میں آپ کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ کو دوں گا حضرت امام حسین نے چٹھی لکھی حضرت حبیب ابن مظاہر کے پاس اور کہا او میرے یار آج مجھے کوفہ کی طرف روانہ ہونا ہے اگر تم چاہتے ہو میرے ساتھ جانا تم بھی میرے ساتھ چلو لیکن سمجھ لو وہاں جانے کے بعد ایسا نہیں کہ وہاں کے لوگ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے ہو سکتا ہے کوفہ والے کی غداری مشہور ہے میرے سر کو قلم کر دے حضرت حبیب ابن مظاہر کے پاس چٹھی پہنچنی تھی امام حسین کے مکہ پہنچنے سے پہلے حبیب ابن مظاہر مکہ کا سرحد پر پہنچ رہے ہیں پہنچنے کے بعد حضرت حبیب ابن مظاہر حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا کی پھٹتی ہوئی صحرا پر پہنچے وہاں پہ جانے کے بعد پڑاؤ ڈالا گیا خیمہ ڈالا گیا جب خیمہ ڈالا گیا جب نویں کی شب ہوئی امام حسین نے اپنے تمام جانشاروں کو بلایا بلانے کے بعد اکٹھا کیا چراغ کو بجھوا دیا بجھانے کے بعد اپنے تمام جانشاروں سے کہا وہ میرے جانشارے اگر تم جانا چاہتے چلے جاؤ اگر تم واپس جانا چاہتے چلے جاؤ اس میں وہ بھی جس کے بیٹے دین ہو جائیں گے اس میں وہ بھی جن کے باپ کی لاٹھی جس کے دکھی میں سے لاٹھی ٹوٹ جائے گی امام حسین نے جب اپنی تقریر کی خطبہ بیان کرنے کے بعد پھر چراغ جلانے کا حکم دیا چراغ جلائی گئی جب دیکھتے امام حسین کیا ہے جو سب بیٹھے تھے اسی طرح سے سب لوگ بیٹھے ہیں لیکن جیسے طریقہ بدل چکا تھا بیٹھے سب کے ساتھ لیکن جب چراغ بجھائی گئی سب لوگ مسکرا رہے تھے سب لوگ امام حسین کی باتیں سماعت کرتی ہے اللہ اکبر لیکن جب چراغ جلائی گئی جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے سب سے آنسو سب سے آنکھوں سے آنسوؤں کو سیلاب جاری تھے امام حسین نے کہا وہ لوگوں نہیں جاؤ حبیب ابن مظاہر اٹھنے کے بعد کہا
हुसैन जरा सुन लीजिए, मैं वही हबीब इब्ने मज़ाहिर हूँ जिसने आपसे इश्क और आशिकी की दम भरी है। बचपन में सिर्फ मैंने आपसे मोहब्बत रखी है, पल पल मरते दम तक आपको मोहब्बत में लगा लिया है। जब ये करबला के मैदान पे यजीदी अगर आप पर कोई हमला करेंगे, आप बाद में जाएंगे, हबीब पहले जाएगा। एक चीज अपने ज़हन में बसा ले, जिस वक्त हबीब इब्ने मज़ाहिर करबला की धरती पे गए थे, उस वक्त उनकी उम्र को 30 या 40 साल की न थी, कोई 18 या 20 साल की न थी, बल्कि उनकी उम्र 72 साल की थी। वो ऐसे थे जो लाठी के सहारे चला करते थे, बड़े इंसान थे जिनको लोग अपने हाथों से घोड़े पे सवार किया करते थे, इतने लागर इंसान थे। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन के साथ मोहब्बत का दम भरा था, वो मरते मरते तक कदा करते रहे। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा ठीक है, सब लोग नवाज़ी में लग जाए। जब 10वीं मुहर्रम का दिन आया, यजीदियों ने कहा है कोई जो मेरा मुकाबला करेगा, है कोई जो मेरे मुकाबले में आएगा हुसैन की तरफ से। हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा ओ इमाम हुसैन आप आ जाइए, आइए मेरे घर पे इमामाबाद है। हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर के सर पे इमामाबाद कहा आप अपने हाथ से तलवार दे दो। हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर की तलवार दिया गया। इमाम हुसैन से कहते हैं हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर के हुजूर अगर गुस्ताखी न हो अपने कदम को आगे या पीछे छोड़े। इमाम हुसैन ने जो ही अपने कदम को आगे की ओर बढ़ाया, हबीब इब्ने मज़ाहिर कदम के नीचे झुके, फिर उस मिट्टी को उठाया और अपने सरों पे डाल दिया। कहा ओ हुसैन इकरामी, मैं तो इस काबिल नहीं कि मैं अपने घोड़े पे सवार हो सकूं, मुझे सही घोड़े पर तो सवार कर दो। इमाम हुसैन ने अपने दस्ते शख्सियत से हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर के घोड़े पे सवार किया। जरा जिसकी उम्र 72 साल की है, वो इंसान लाठी के सहारे चल रहा है, वो इंसान जो अपने ताकत के बलबूते पे घोड़े पे चल सकता। तारीख गवाह है, तारीख गवाह है, जब हबीब इब्ने मज़ाहिर करबला की तपती हुई लोगों को नार कर दिया, 41 लोगों को फांसी जहन्नम किया। जब 41 लोग मारे गए, हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर ने किसान ने कहा कि अगर हो तो आप पानी पी ले, पानी नोश कर लें। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा ठीक है पानी लेके आओ। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने तलवार को अपने नियाब में डाला, डालने के बाद पानी लेकर यजीदी आया। दुनिया समझ रही थी हबीब इब्ने मज़ाहिर बदल गया, दुनिया सोच रही थी हबीब इब्ने मज़ाहिर बदल गए, लोग कह रहे थे हबीब इब्ने मज़ाहिर बदल गए। लेकिन हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर के पास जब पानी लेकर आया, अपने एक कदम को निकाल कर निकाला, ऐसा मारा, ऐसा मारा, वो प्याला वापस जाकर फिर उसी इंसान के चेहरे पे लगा। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा हो यजीदी क्या तुझे समझ नहीं है कि हुसैन के नाम पे फेंका हुआ इंसान तेरे पानी के नाम पे फेंक जाएगा। जिस पानी नहरे आपकी पानी क्या ताकत रख रही है। मेरे लिए तो हौसले कौसर लेके नबी खड़े हैं, मेरे लिए तो हौसले कौसर लेके नबी खड़े हैं। ये पानी की क्या जरूरत है? कभी तो शायद क्या कतले हमारे यकीन है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर जब शहीद हो गए, जामे शहादत के लिए लोग इमाम हुसैन तलाश कर रहे हैं। हबीब इब्ने मज़ाहिर मेरे यार तुम गए, मेरे यार तुम गए, उस कटे हुए कीर्तन से आवाज़ आ रही थी मेरे यार मैं यहाँ हूँ, जहाँ पे आकर जहाँ पे आकर अज़ाने हुई थी मैं उसी जगह पे हूँ। हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर को लाया गया। मिलत के नौजवानों को ढोलक लगा देने का नाम मुहर्रम नहीं है, ताजिया निकाल लेने का नाम मुहर्रम नहीं है, समझ से बया लेने का नाम मुहर्रम नहीं है। मुहर्रम के इकराम का महीना है, ये वो महीना है जिस महीने में हम लोग इमाम हुसैन की बात मनाते हैं। आज जरा अपने गिरबान को झाँक कर देखे कि हम जो ढोलक लगाते थे हुसैन ने करबला में ढोलक लगाया था, हरगिज़ नहीं। आज जो हम तमच्चे बजाते हैं इमाम हुसैन ने बचाया था,
पत्थर की रोटी इमाम हुसैन के सर को काट के यजीदियों ने अपने कमान में बर्छी में डालकर हुसैन का नारा लगाया था। आज हम हुसैनी कहलाते हैं, आज अपने आप को कहते ढोलक बजाते हम हुसैनी है, अपने आप को एकदम करते हम हुसैनी है। मेरे मिलत के नौजवानों, हुसैनी के वो नन्हे अली असद ने भी पानी न पिया, जाने शहादत दिया। मैं आपसे पूछना चाहता, आपसे जरा दिल की खिलाई से सवाल अगर पूछे तो आप बताएं कि अगर आपका साल 2 साल का बच्चा पानी के लिए तरस रहा हो और पानी न हो तो इस जाने जाकर आपसे कहे कि आप दीन से मुनहरिफ हो जाए, दीन से आप बदल जाए, जब आप दीन से मुनहरिफ हो जाएंगे मैं आपको पानी दे दूंगा और मिलत के नौजवानों से और आप बदल जाएंगे। लेकिन इमाम हुसैन से पहले ने कहा मेरे भैया जान तमाम लोगों को तो दुश्मनी आप है, इसलिए अली असद से किसको दुश्मनी है, ले जाए कहीं पानी दे दे। हजरत इमाम हुसैन नन्हे अली असद को गए, 6 माह के अली असद को लेके गए। जाने के बाद मेरे हजरात के करीब खड़े होकर कहा मुझसे दुश्मनी है, इस नन्हे अली असद को तो पानी दे दो, काफी की जवानी का लुक कम से कम इसको पानी दे दो। और लोग मोहम्मद को तेरे हवाले कर दिया, पानी कम से कम अली असद को दे दो। पूरी रवाई को तुमने तो ले लिया, पानी अली असद को दे दो। तुमने हबीब इब्ने मताही को तो ले लिया, पानी अली असद को दे दो। मुझे दुश्मनी है, मुझसे बदला ले लेना। अली असद से कौन दुश्मनी है? इमाम हुसैन पानी कर रहे थे, चुल्लू में पानी ये सीधी में तीर मारा, ऐसा तीर मारा जो ऐसा तीर मारा जो हजरत नन्हे अली असद के हुलूम को चीरता हुआ चला गया। मैं पूछना चाहता इमाम हुसैन नन्हे अली असद ने करबला में उठाकर का ये ऐलान किया था, क्या आप कुरान न पढ़ते? ये ऐलान किया था जो मोहम्मद ने, क्या आप नमाज न पढ़ते? क्या ये ऐलान किया था आप जिक्र शहादत सुने? नहीं, हजरत इमाम हुसैन को करबला में जाने का मकसद से था ताकि कुरान की हिफाजत हो जाए। नन्हे अली असद को जाने शहादत पीने का मकसद से था ताकि नमाज की हिफाजत हो जाए। और मोहम्मद को जाने शहादत पीने का मकसद से था ताकि इस्लाम का अलग ऊंचा हो जाए। मैं पूछना चाहता मिलत के नौजवानों, आज कहाँ है कभी को शायद में बड़ा प्यारा नक्शा खींचा, जाने बदरू हुनैन कहते हैं, फातिमी नूरुल ऐन कहते हैं, जाने बदरू हुनैन कहते हैं, फातिमी नूरुल ऐन कहते हैं। पीर की खातिर लुटा जिसने तुमको हम उसी को हुसैन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह लुटा जिसने तुमको हम उसी को हुसैन कहते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता, जरा सोचो